Huge, huge, huge round of applause for our guest speaker, Senior Inspector Mr. Dadaram Karande and Assistant Inspector Mr. Swapnil Bishwas. I welcome both of our chief guests. Thank you so much, sir. Now I would like to call our academic head of excellence, Ms. Swati Singh, to please come forward. Yes, and felicitate our guest speaker, Senior Inspector Mr. Dadaram Karande and Assistant Inspector Mr. Swapan Vishwas with a bouquet of flower. All of you give a huge round of applause. Everyone, please show your energy, all of you. Namaste and a very good afternoon to everyone present here today. I extend a warm welcome to everyone present here for 11th Gyanbodh session today. On this occasion, we have invited two special guest speakers who were kind enough to accept our invitation despite of having a busy schedule. Our first speaker is Mr. Dadaram Subhash Karande. He is a Senior Inspector of Uttan Sagri Police Station, Mira Bhayandar Vasai Virar Commissionerate, talking about his educational qualification. He has completed his bachelor's in agriculture from College of Agriculture, Pune in the year 2004. He has worked as an agriculture department of Pune. He has worked in agriculture department of Government of Maharashtra as agriculture assistant at Taluka Agriculture Office, Vai District, Satara from the year 2004 to 2008. He was selected as a police sub-inspector in the year 2008 after training in MPA Nasik, worked Navi Mumbai from the year 2010 to 2013, that was Kharghar Police Station, CBD, Belapur. After promotion as an assistant police inspector posted in Nagpur city, he worked there from December 2013 in Dhantoli Police Station, QRT Commando, Sonegaon Police Station, Traffic Branch. After promotion again as a police inspector posted in Mira Bhayandar Vasai Virar Police Commissionerate, he worked in Wali Police Station. After that, worked as an in-charge in Traffic Control Branch, Virar. During branch tenure, each one teach one traffic rules for everyone campaign was conducted by him. Please give a huge round of applause for him. So he has taught everyone about the traffic rules. Apart from this, he also have done QRT Commando GCPC, which was conducted by Maharashtra Force 1. Till date, he has received 190 awards and 22 certificates for crime investigation and work done in various branches of police department. Now, let's come to our second speaker. Our second speaker is Assistant Police Inspector Mr. Swapan Bishwas in Uttan Sagri Police Station. He has graduated from Nagpur University and passed BSc in Physics, Chemistry and Mathematics in the year 1990. He was serving as maths teacher in Krushik High School, Charmashi District, Gadchiroli since 1991 to 1993. After that, he joined Police Department in October 1993. He served in highly Naxal-affected Gadchiroli and Gondia district at the border of Chhattisgarh, Telangana. He has completed over 30 years of service and had been posted in Gadchiroli, Gondia, Raigad, Thane, Mumbai, Palghar, Mira Bhayandar, etc. His achievements are as follows. He got Vishesh Seva Padak in the year 1996. Everyone give a huge round of applause. These are the achievements he has. Then again, he got Antrik Suraksha Seva Padak in the year 1999. Then Vishesh Seva Padak in the year 2016. He was also posted at Anti-Corruption Bureau since 2019 to 2023. We welcome both of you, sir. I feel honored that I was given opportunity to speak about you and your accomplishment in front of my school. On behalf of everyone, we feel lucky to have you at our 11th Gyanbodh session, and I hope today many students will be able to seek the guidance from your thoughts. I'm more delighted to hear from you about speaking about traffic police and cybercrime. Now, without delaying, I would like to call a senior inspector.
Yes, Mr. Sopan. First, I would like to call Assistant Inspector Mr. Sopan Vishwas on stage. नमस्कार। कौन सी भाषा में बात करें? मराठी, हिंदी, इंग्लिश? लेट्स स्पीक इन इंग्लिश ना, हिंदी इंग्लिश। ओके। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस नवरात्रि में हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके चरणों में मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपके इंस्टीट्यूशन का कि उन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया और आप सबसे इंटरेक्शन करने का एक जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें दिया। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि आप जो बच्चे हैं यहाँ पर आज पढ़ रहे, आप इस देश का भविष्य है। आगे जाके आप ही को इस देश को संभालना है। तो आप सबसे बात करने का, आप सबसे इंटरेक्शन करने का जो एक अलग ही मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सबसे पहले देखता हूँ कि आजू बाजू में स्कूल कौन से हैं, कहाँ जाके बात कर सकते हैं बच्चों से। मैं पिछली बार जब गणेशोत्सव में यहाँ पर आया था, वर्मा जी से मुलाकात हुई। मैंने वर्मा जी को बोला कि वर्मा जी मिलते हैं बच्चों से एक बार, तो बोले सर आ जाइए। तो उसके लिए वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मेरा परिचय मैडम ने दिया है, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में गढ़चिरोली एक डिस्ट्रिक्ट है ऐसा जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है, जो हाईली नक्सल अफेक्टेड है। आप सुनते हो कि वहाँ पर नक्सल की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ और वहाँ से अभी वो ईस्ट महाराष्ट्र है और ये वेस्ट महाराष्ट्र है। पूर्व से लेके पश्चिम तक पूरा घूमना हो गया महाराष्ट्र का। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मैं आपको कुछ अलग बताने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो मैं आप सबसे शेयर करने आया हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि मैं खाली अकेला पुलिस नहीं हूँ, पुलिस आप भी हो। मैं यूनिफॉर्म पे हूँ, आप विदाउट यूनिफॉर्म हो। तो जो ड्यूटीज़ मेरी है, उस ड्यूटीज़ को अगर आप थोड़ी थोड़ी शेयर करो तो मुझे लगता है ये समाज और ज़्यादा सुंदर होगा। सही है ना? तो इसलिए आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। जैसे हर चीज़ का दो साइड होता है, एक ब्राइट साइड, एक ब्लैक साइड। तो आपको हर चीज़ के जो ब्राइट साइड है वो भी समझना है, लेकिन उसका जो ब्लैक साइड है वो भी समझ लेना चाहिए, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पे हूँ और आप सबको एक मेरे तरफ देखने का जो नजरिया है वो अलग है। सही है कि गलत है? क्योंकि यूनिफॉर्म पुलिस जो होता है, पुलिस आपने सिर्फ सुना है पुलिस, लेकिन एक पुलिस के अंदर जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज हर बच्चे में अगर आ जाए, मैं वही बात समझाने के लिए आप सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करने की कोशिश करता हूं। पुलिस का अगर स्पेलिंग देखेंगे आप, POLICE, ये जो एवरी लेटर्स है, दे स्टैंड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। P stands for politeness. We should be polite. To whom? To the people. आप में भी वो गुण होना चाहिए, विनम्रता। किसके प्रति? आपके आजू बाजू में जो है उनके प्रति, आपके जो गुरुजन है उनके प्रति। हमारे जो सीनियर्स है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो पीपल है, हम उनसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। O स्टैंड्स फॉर ओबीडियंस, आज्ञाधारकता जिसको बोलते हैं हम, आज्ञाधारक।
आप किसके आज्ञाधारक होना चाहिए? आपके जो गुरुजी है, आपके जो माता पिता है, आपके जो बड़े हैं। हम जैसे हमारे सीनियर्स है, हम अपने सीनियर्स को जैसे ही मिलते हैं, जैसे सर मेरे सीनियर है, तो मेरे एंट्रेंस के साथ सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि मैं अपने सर को सल्यूट करता हूं, मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट। ये आप लोगों में भी ये बात होनी चाहिए। L for loyalty. Loyalty to whom? Loyalty to the society, loyalty to your service. जो काम आप कर रहे हो उस काम के प्रति, समाज के प्रति, समाज जो है, समाज के हम ऋणी हैं, किसी ना किसी रूप में समाज के हम ऋणी हैं। उस ऋण को हमने अपनी जिंदगी में उसका ये करना, रिटर्न देना चाहिए ना समाज को, तो हम देने की कोशिश करते हैं। लॉयल्टी टू द सोसाइटी, लॉयल्टी टू द पीपल। आई फॉर इंटीग्रिटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी। आप सब में वो इंटीग्रिटी होना चाहिए। वो आप समाज को एक अलग ही चीज देनी चाहिए। सी फॉर करेज, धैर्य। जैसे आप सब स्पोर्ट्समैन हो, तो करेज कब? जब हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ओवरकम करने का। जैसे मैं आपको एक साधा और सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में था, तो एक पोस्ट पे हम जब थे, तो हम ऐसे ऑपरेशंस को गए, और हम टोटल 33 हम लोग थे, और नक्सलवादियों ने हमें घेर लिया चारों तरफ से। वो कितने लोग थे? वो 400 से 450 लोग थे नक्सलाइट्स। और एनकाउंटर शुरू हो गया, फायरिंग शुरू हो गया। तो ऐसे में अगर सामने वाले की स्ट्रेंथ देख के आप डर जाओ, तो आप कभी सामना कर पाओगे? नहीं। आपको सामने वाले को कम भी नहीं ये करना चाहिए, आंकना चाहिए, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है उससे आपको डरना भी नहीं चाहिए। वो करेज आप में होना चाहिए। वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने की जो धैर्य है वो आप में होना चाहिए। एंड ई फॉर एफिशिएंसी, कार्यक्षमता। आप में वो कार्यक्षमता होना चाहिए, आप में वो एफिशिएंसी होना चाहिए कि आपकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को आप फुलफिल कर सको। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है, मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब मैं भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में था, तो वहां पर मैं नाइट शिफ्ट में था, 9 से 9 बजे तक की ड्यूटी, 12 घंटे की। मैं एक 8-8:15 बजे एक कॉल आया कि एक डेड बॉडी वहां पर पड़ी है करके। हम स्पॉट पे गए, बाकी जो काम है वो शुरू हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। जो एक्यूज्ड है उसके बारे में कुछ क्लू मिली, वहां से मैं अपनी टीम लेके तुरंत निकल गया। मैं घर नहीं गया। मैं घर 3 दिन के बाद मैं घर गया। 3 दिन एक ही यूनिफॉर्म पे, खाना भी नहीं अपने पास में, कुछ नहीं। लेकिन 3 दिन बाद उस आरोपी को जब मैंने पकड़ा, तो मुझ में वो थकान बिल्कुल ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे सक्सेस मिल गया था। मुझ में थकान क्यों नहीं थी, ये बात आप सबको पहले समझना पड़ेगा। थकान महसूस क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिस काम के लिए मैं निकला था, उस काम में मुझे सक्सेस मिला था। तो आप जिस काम के लिए यहां पर आए हो, जिस काम के लिए आपके माता पिता ने यहां पर भेजा है, जब उस काम में आपको सक्सेस मिल जाएगा, आपने देखना कि आप में वो थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। सही बात है ना? तो इसलिए आप सब ने सबसे पहले ये बात याद रखना चाहिए कि जैसे पुलिस के हर लेटर्स कुछ आपको मीनिंग देता है, वैसे आप जैसे यहाँ पर आए हो, आप लोगों की भी कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज है, उसको आपने ओबे करना चाहिए। आपके जो बड़े हैं उनके, आपके जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो करना चाहिए। और एक दूसरे के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, उसे बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों, हमें किसी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपना गोल फिक्स करना पड़ता है। सही है ना? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्लियर इन योर माइंड, यू कांट ड्रॉ द पिक्चर प्रॉपरली। सही है ना?
जब तक अपने दिमाग में वो चीज क्लियर नहीं होगा हम उसे ड्रॉ कर पाएंगे क्या? तो आपने आपके गोल को फिक्स करना चाहिए और फिर उस अचीवमेंट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ पर जिसलिए आए हैं, आज का हमारा जो सेशन था वो था साइबर अवेयरनेस के बारे में। वो मेरे सर, सीनियर सर है, ही इज साइबर एक्सपर्ट, तो ही विल इंटरेक्ट विथ यू वेरी डीपली एंड प्रॉपरली। उससे पहले मैं खाली यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि आप सबको जो मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है और आप में जो मैं ढूंढते रहता हूँ वो शेयर करने मैं यहाँ पर आया हूँ। बच्चे जब लाइन से, मैं कुछ कुछ बच्चों को देखता हूँ लाइन से खड़े रहते हैं और जैसे ही मैं गुजरता हूँ जय हिंद सर, तो जब आप जय हिंद बोलते हो कि आप अपने देश को सल्यूट कर रहे हो, मुझे नहीं, मैं जो यूनिफॉर्म पहना हूं उसे सल्यूट कर रहे हो। तो ये चीजें अगर आप में आ जाए, समझ में आ जाए आपकी कि आप नमस्कार किसे कर रहे हो, तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। दोस्तों, जो समाज में आजकल हो रहा है, जिस चीज के लिए आज हम यहां पर आए हैं, जो साइबर अवेयरनेस, आपको पता है कि आज सबके पास फोन है, आईफोन है, एंड्रॉयड फोन है, कंप्यूटर्स है, तो उसके बगैर आज का जीना मुश्किल हो गया है। हर चीज आप जो इंटरनेट है उस पर सर्च करके मिल सकता है आपको बहुत इजीली। आप जो नॉलेज है उसे पा सकते हो, लेकिन उसका एक ब्लैक साइड भी है। अगर उस ब्लैक साइड को आप समझ लो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो नॉलेज है उसे प्राप्त करना आसान हो जाएगा। कुछ उदाहरण है सर हमारे बताएंगे कि उससे कैसे बचा जाए। जो इंटरनेट सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके बारे में सर बोलने वाले ही है। लेकिन जो समाज में मैं देखता हूँ आजकल मैक्सिमम कुछ जो प्रकार है, मैं खाली टच करके जाता हूँ कि जो इंटरनेट, जो साइबर की जो क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स मीन्स कि जो इंटरनेट की एक्टिविटीज है वो गलत तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, आप लोगों से कुछ प्राप्त किया जाता है और फिर उस चीज का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक फिशिंग है कि आपको कुछ चीजें, एक आधे लिंक भेज देते हैं, ओपन करो, फिर आप उस लिंक को ओपन करते हैं, आपका पर्सनल डाटा सब उसमें चला जाता है। अभी 2018 में फिशिंग का एक बहुत बड़ा ये हुआ था। 2018 में आई थिंक वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू था, तो वहाँ पर वो सबको जो फुटबॉल प्रेमी है उनको एक मोबाइल में एक मैसेज आते थे कि आपको अगर मोरक्को फ्री जाना है, फ्री टिकट चाहिए, तो इस लिंक को ओपन करिए। जैसे कोई इस लिंक को ओपन करे तो उनका पर्सनल डाटा सब वो हैकर्स को चला जाता था। तो ये सब चीजें सर आपको बताएंगे। जो मेनली जो होता है, जिस चीज का हम शिकार हो जाते हैं, स्पेशली लेडीज या बच्चे, जो उसका एक सारा और बहुत ये नाम है सेक्सटॉर्शन, जिसे बोलता है, जिसे सेक्सटॉर्शन कहा जाता है, कि आपको किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसे आप जानते नहीं हो, आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, फिर बाद में आपकी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है, आप अपने पर्सनल्स जो भी है इंफॉर्मेशंस उन्हें शेयर करते रहते हो, और फिर जब उसे सब कुछ पता चल जाता है उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर अभी अभी एक ये हुआ कि एक लड़की की दोस्ती हुई एक इंसान से, एक बंदे से, वो लंदन में रहता था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर बाद में धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। वो लड़के ने बोला कि तेरा एड्रेस भेज घर का, मैं कुछ गिफ्ट भेजता हूँ। प्रैक्टिकल है, उसके इन्वेस्टिगेशन चालू है। फिर वो लड़की ने उसको अपना घर का एड्रेस शेयर किया, और फिर बाद में दूसरे तीसरे दिन दिल्ली से कॉल आया कि आपका एक पार्सल आया है, तो उस पार्सल को अगर आपको लेना है तो आपको 21,000 पे करना पड़ेगा। लड़की ने 21,000 पे किया, और फिर बाद में दूसरे दिन कॉल आया फिर से कि आपके उस पार्सल में करेंसी है, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, या उसे अगर आपको लेना है तो आपको 1,46,000 और पे करना पड़ेगा। और ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर लड़की ने उस लड़के को फ़ोन किया कि तूने पार्सल में क्या भेजा? उसने बोला कि मैंने डायमंड ज्वेलरी भेजा।
फिर बाद में दूसरे दिन फ़ोन किया, तूने उसमें पैसे भेजा क्या? तो उसने बोला कि हाँ मैंने 50,000 पाउंड भेजा है उसमें, 50,000 पाउंड। कोई सोचने वाली बात है, कोई आपको इतने बड़े कोई दानवीर है कि आपको खाली पीली 50,000 पाउंड भेज देगा? उस पार्सल को छुड़ाने के लिए उस लड़की ने टोटल 27 लाख रुपए पे किए। और बाद में जब उसे पता चला कि नहीं ये सब गलत है, फिर वो पुलिस के पास आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। इन सब चीजों को आपने ध्यान में रखना चाहिए। किसी का भी अननोन का फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे एक्सेप्ट मत करो। आप अपना ओटीपी किसी को शेयर मत करो। आप अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी को शेयर मत करो। और दूसरी एक चीज, पासवर्ड जो हम रखते हैं, अभी एक एडीआर हो गया था, एकदम सिंपल है। उसका फोन लॉक था, मैंने खाली पूछा कि ये लड़का करता क्या था, क्योंकि वो अफेयर की वजह से सुसाइड किया। मैंने पूछा वो लड़की का नाम क्या है, इसको पूछा तो उसने एक नाम बताया, और मैंने वो लड़के के जो ये है उसमें खाली उस लड़की के नाम का जो इनिशियल ये है पहला अक्षर उसका ड्रॉ किया, तो वो फोन खुल गया। क्योंकि पासवर्ड हम रखते ज्यादा से ज्यादा क्या रखते हैं, हम अपना बर्थडे रखेंगे, अपने पिताजी का नाम या अपनी माँ का, जिससे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है, वो रख देते। तो ये कॉमन चीजें जो पासवर्ड आप रखते हो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसका आपको उस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए। और ओटीपी किसी से शेयर मत करो। मैं सबसे यही बोलता हूं कि अगर किसी का भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसे इग्नोर करना सीखो, क्योंकि वो आपके लिए खतरे की घंटी है। जो पाप है ना दोस्तों, वो इतना सुंदर पोशाक पहन के सामने आता है कि हर किसी को उसे गले लगाने की इच्छा होती। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सामने जो बंदा खड़ा है वो कौन है। हमारे पुलिस ट्रेनिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है कि हर सामने वाले जो बंदा है उससे बातें आप हंस के करो, लेकिन दिमाग में ये चलने दो कहीं और कुछ तो करने तो नहीं आया ये। हर एडीआर जो है उसको मर्डर के हिसाब से देखो। जैसे एक्सीडेंटल डेथ है तो हर एक्सीडेंटल डेथ को मर्डर के हिसाब से ट्रीट करो। तो ये चीजें अगर हम सीख जाए तो बहुत चीजें हम अचीव कर लेंगे। मैं वर्मा जी के फिर से एक बार वर्मा जी का आभार मानता हूं कि आप सबसे यहाँ पर बात करने के लिए हमें बुलाया। मैं आप सबसे दोस्त यही उम्मीद करूँगा, आप सबसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो डिसिप्लिन है, विदाउट डिसिप्लिन यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारा जो फोर्स है, जितने भी यूनिफॉर्म फोर्स है, वेल डिसिप्लिन्ड है। जैसे यहां सामने बैठे हैं हर कोई, आप भी एक यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो तो उस यूनिफॉर्म का मान आपने रखना चाहिए। आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना जरूरी है। टीम वर्क जो रहता है वो टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टीम वर्क बोले तो क्या है, एक टीम में जो अगर एक क्रिकेट का टीम देखो आप तो पूरे 11 के 11 प्लेयर सचिन तेंदुलकर है क्या? तो हर किसी में कुछ खूबी है, कुछ खामी है। तो वो टीम जो मेरा जो साथी है उसमें क्या खूबी है उसका मैंने इस्तेमाल करना, उसकी क्या खामी है उस चीज को मैंने ओवरकम करना, उसे साथ देना उस फील्ड पे। ये अगर आप में आ जाए तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। सबसे पहले अपने जो गुरुजन हैं उनका सम्मान करना सीखिए। आपके माँ बाप ने आपको यहाँ जिस उद्देश्य से भेजा है उस चीज को कभी भूलो मत। अपने माँ बाप के प्रति जो सम्मान है, क्योंकि अगर धरती पर कोई भगवान है साक्षात रूप में तो वो माँ बाप ही है। भगवान हर किसी के पास जा नहीं सकता, इसलिए माँ बना के आपके पास भेज दिया।
तो उनके प्रति आपके दिल में जिस दिन वो भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, आप खाली शरीर से इंसान रहोगे, लेकिन आपके अंदर की इंसानियत मर जाएगी। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखें और जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हो, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में आप आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। और हम जो पुलिस आपके सामने रहते हैं, सबसे पहले हमारे बीच एक दोस्ती का बॉन्डिंग तैयार हो, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पे हूँ तो आप मुझसे दूर मत भागो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे बिना झिझक के मुझसे शेयर करना सीखो। तो अगर हम एक दूसरे की डिफ़िकल्टीज एक दूसरे के साथ शेयर करना सीख जाएंगे तो बहुत सारी तकलीफें आपो आप ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें आप सब। और अभी जिस के लिए हम यहाँ पर आए, जो क्लास यहाँ पर होने वाला है साइबर अवेयरनेस का, उस बारे में हमारे सीनियर पीआई सर करांडे सर वो आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशंस देंगे। आप सब ने यहाँ पर बड़े धैर्य के साथ और शांतता के साथ मुझे यहाँ पर सुना, उसके लिए थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। एंड फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your kind words of wisdom. Now, I would like to call our next guest speaker, Mr. Karande, sir, to please come on stage. Good afternoon, everybody. Basically, I am agriculture graduate. I worked in agriculture, then worked in police station, then work in traffic branch, also work in commando force, and now I am coming here to teach you about cyber. तो आप सोचते होंगे ये कहाँ से आया और ये क्या पढ़ाने आया, बराबर? किसी को लग रहा है ऐसा। तो बेसिकली आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। एवरी डे इज न्यू फॉर मी एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग ईच डे। सो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो साइबर का हमने पढ़ लिया है, साइबर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इससे पहले मैं ट्रैफिक ब्रांच में था। पीपीटी लागते का ते चालू होते ना, पीपीटी लावून ट्रॅफिकचे। बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू show you one song. Whenever I was in traffic branch, we started each one teach one traffic rules for everyone, that is traffic awareness program. I write this song and also आहे त्याच्यात लागू शकेल ते गाड्या व्हीकल कितने स्टूडेंट चलाते अभी, हाथ ऊपर करो। कितने लोग चलाते? अभी हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। लाइसेंस किसके पास है व्हीकल का? लर्न बराबर, नीचे करो। आपके पास भी होगा या नहीं होगा मुझे डाउट है। ट्रैफिक रूल्स कितने लोगों को पता है? अच्छा, अच्छी बात है। जिनको पता नहीं है वो ये सॉन्ग देखेंगे, इसके बाद जितने भी रूल्स है सभी आपको मिलेंगे यहाँ देखने के लिए। और जिनको पता भी है वो भी एक बार रिवीजन होगा उनका भी। Road traffic injuries and deaths are not accidents, they are preventable. It is our collective responsibility to prevent the accidents. So each one must teach one about traffic rules. Each one teach one will be the campaign for traffic rules. Each one teach one traffic rules for everyone. Each one teach one traffic rules for everyone. For traffic rules and safety run, obey traffic everyone. Each one teach one traffic rules for everyone. Registration, fitness insurance, driving license, PUC,
traffic rules for everyone. अरे रॉकेट चंद्रावर जाणार का? ए थांब, लायसन दाखव. Drunk and drive don't make sense. Mobile and drive don't make sense. Obey the signal don't jump in. Sleep and drive never try it. Speed thrills but it kills. Speed thrills but it kills. रफ्तार से ज्यादा जिंदगी जरूरी है मेरे भाई. But foreign don't end up dead. Each one traffic rules for everyone. Each one traffic rules for everyone. ऑटो वाले भाई साहब, वाइड फ्रंट सीट फॉर इजी रन. यूनिफॉर्म बैच जरूरी है. लाउड म्यूजिक गाड़ी में मत बजाओ यार. Silencer को silent करो. Honking पैसेंजर के लिए नो शाउटिंग मेरे भाई. शोर शराबा हो जाए कम. Noise pollution करो खत्म. Each one traffic rules for everyone. Each one traffic rules for everyone. मुड़ना है तो इंडिकेट करो, रुकना है तो पार्किंग लाइट लगाओ, रिफ्लेक्टर का यूज करो, गाड़ी का लाइट हमेशा विजिबल हो. Stop the vehicle at stop line. Zebra crossing for walkers line. हो ट्रैफिक जैम होगा तब ओवरटेक ना करेंगे. फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस को सीधा रास्ता देंगे. Each one traffic rules for everyone. Each one traffic rules for everyone. वाहतूक नियम पाळा, अपघात टाळा. Hug your kids at home, but bail them in the car. Seat belt को पहना करो. कार का ताज नीचे न हो. नंबर प्लेट फैंसी न हो. दादा, मामा, बाबा, नंबर प्लेट वरती असलं काय नको रे बाबा. Each one traffic rules for everyone. Each one traffic rules for everyone. थैंक यू. आप स्टूडेंट इतने लकी है. तो हमारे ज़माने में, हमारे टाइम में ऐसा ऑडियो विजुअल वगैरह कुछ नहीं था पढ़ने के लिए. तो ये जो सुविधाएं है आपके पास, जितना आपको मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन करके आपको विश्वास साहब ने जैसे बताया है, अच्छे से अच्छे पहला नागरिक बनना है देश का. बाद में जो भी करियर करना है वो करियर करना है. बराबर. चलो, तो फिलहाल अभी बहुत सारे स्टूडेंट को पता चला होगा ट्रैफिक रूल. जिनको पता था उनका रिवाइज हो गया, जिनको पता नहीं था 36, 37 कुछ तो रूल्स आपको पता चल गए. अभी हम जाएंगे साइबर की तरह. साइबर सिक्योरिटी की, साइबर क्राइम क्या रहता है, साइबर क्या है, व्हाट इज एक्चुअल साइबर क्राइम. Basically, I would like to start from yourself. Actually, I am not क्या बोलते हैं, मैं टीचर जैसा आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा. I would like to interact to you. Firstly, I ask you, अभी कितने बच्चे यहाँ पे गेम खेलते, गेम, ऑनलाइन गेम? सभी खेलते हैं तकरीबन. जो नहीं खेलते वो भी. कौन सा? फ्री फायर, माइंडक्राफ्ट, क्या, कौन सा? IGI. हाँ, GT वाई सिटी, वेरी गुड. तो अभी तक सच में बताना,
अभी तक कितने स्टूडेंट ने माता पिता के अकाउंट से पैसे कटवाए हैं? किसके डिडक्ट हुए क्या? मैं घर पे नहीं बताऊंगा आपके, हुए ना बराबर? एक दो जन है वो थोड़ा लॉयली बता रहे होंगे, किसी ने किए होंगे। मेरे बेटे ने भी मेरे अकाउंट से कट किया था। तो गेम खेलते खेलते जो पेड जो भी आप इंस्ट्रूमेंट है, मानो माइंडक्राफ्ट खेल रहे हो या दूसरा कौन सा फ्री फायर, वो कुछ चीज़ें आप ले लेते हो बराबर, उसी टाइम पे आप जो अकाउंट अटैच कर देते हैं, कौन सा भी बैंक का अकाउंट, आपका खुद का तो नहीं होगा, मदर का, फादर का, जिसका भी किसका होगा, भाई का, बहन का, तो अटैच करने के बाद अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है किसके पास? फ्रॉडस्टर के पास। फ्रॉडस्टर के पास इन्फॉर्मेशन शेयर होने के बाद ऑटोमेटिकली डिडक्शन ऑफ मनी ये होते रहता है। ये हो गई फाइनेंशियल फ्रॉड का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दे दिया। दूसरा, सर ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, ऐसा कोई दानशूर नहीं है कि जो 100 रुपये लेगा और आपको 200 रुपये देगा बराबर। कोई ऐसा घाटे वाला बिजनेस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको भी पता नहीं रहता, उनको लगता है कि वो प्रलोभन दिखाते हैं हमें, ऐसा करो 200 रुपये डालो, 300 रुपये डालो, हम 600 रुपये भेजेंगे। शुरू में वो क्या करते हैं, कोई टास्क देते हैं। टास्क कैसा रहता है? यूट्यूब वीडियो लाइक्स करो, इंस्टाग्राम वीडियो लाइक्स करो, फेसबुक वीडियो लाइक्स करो बराबर, उसके आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा कोई है क्या वहाँ बैठा जो आपने एक काम किया और आपको पैसा दे दिया? ऐसा कोई भी दानशूर नहीं होता। दैट इज वन टाइप ऑफ फ्रॉड। फ्रॉडस्टर कुछ भी प्रलोभन दिखाते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं और लोग उसमें फंसते रहते हैं। तीसरा, ये टास्क फ्रॉड रहता है। ये टास्क फ्रॉड में वैसा ही कहा जाता है। एक जन तो हमारे यहाँ पे ऐसा आया था, उसको खाली ये बताया कि जो गूगल मैप है, गूगल मैप के लोकेशन के स्क्रीनशॉट निकालो और हमें भेजते रहो। वो भेजता चला गया, उसके अकाउंट में पैसे आते चले गए। बाद में उन्होंने वर्चुअल अकाउंट सोशल मीडिया पे उसका तैयार कर दिया और वो सोशल मीडिया पे उसके वो जो प्लेटफॉर्म है उनका ऐप, वो ऐप पे पैसे जो आ रहे हैं वो दिख रहे थे। 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 9 लाख तक जमा हो गए। बाद में वो विड्रॉ करने गया, डिपॉजिट करते गया, विड्रॉ जब करने गया, ये सब टास्क खत्म होने के बाद, तो उसको बताया गया कि ये पैसे अगर विड्रॉ करने हैं तो प्रोसेसिंग फीस, जैसे फेसबुक का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह पे उनको बताया गया कि ये पैसे विड्रॉ करने के लिए प्रोसेसिंग फी चाहिए, इसलिए वो पैसे फिर मांगने लगे। ये पैसा डालते गया, 3, 4, 5 लाख गए, तब उसके ध्यान में आ गया कि 9 लाख निकालने के लिए 5 लाख थोड़े देने पड़ते हैं। तो दैट इज वन टाइप ऑफ टास्क फ्रॉड। बाद में और एक फ्रॉड रहता है इन्वेस्टिगेशन ऐप का फ्रॉड। इन्वेस्टिगेशन ऐप, जो भी एप्लीकेशन, मोबाइल पे बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे अपने कितने लोगों के अकाउंट है सोशल मीडिया पे? टेलीग्राम, इंस्टा, बराबर, हाथ नीचे ले लो, बराबर है। तो आपने भी देखे होंगे इन्वेस्टमेंट ऐप, बोले तो क्या बोलते हो कि 100 रुपये डालो, 200 रुपये डालो, उसके बाद में इन्वेस्ट करने के बाद ट्रेडिंग भी रहता है, ट्रेड ऐप भी रहता है। बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट का सुना रहता है, शेयर मार्केट रहता है, बैंकिंग रहता है। बैंक रिटर्न कितने % में देती है हम लोगों को? बैंक में अगर कोई पैसा डाले तो 6%, 8% एनुअल, ईयरली मिलता है बराबर। तो ऐसा कोई घाटे में जाके आपको
मंथली 10% 12% रिटर्न दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। फिर भी लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं। दैट इज आल्सो फ्रॉड। बाद में अभी एक नया शुरू हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग करते, बहुत सारे लोग ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं, बराबर। तो ऑनलाइन अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट और कौन सा है, बराबर है, बहुत सारे आपको पता है, मुझसे भी ज़्यादा पता होंगे शायद। नए नए मैं बोला ना पहले से ही कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो हर एक चीज़ सीखता जाता हूँ। वो बहुत सारे जो ऐप है, ओरिजिनल ऐप जो रहता है, ओरिजिनल साइट जो है अमेजॉन की, प्रॉपरली वैसी ही दूसरी साइट तैयार करते, उसको क्लोनिंग बोलते हैं, वेबसाइट क्लोनिंग। सेम वेबसाइट पे आप कॉल करोगे या सर्च करोगे, दूसरी कोई तो वेबसाइट दिखती है। ओरिजिनल अमेजॉन पे आपको अगर कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती है, या डुप्लीकेट साइट पे आपको वो 50 रुपये या 25 रुपीज़ ऐसा कुछ तो प्राइस दिखाया रहता है। तो हमें क्या लगता है, अरे ये साइट से ये साइट बेटर है, यहाँ से हम परचेस करेंगे। कोई भी ऐसा कुछ गड़बड़ जैसा लगे तो वो फ्रॉड है, ये आपने समझ लेना। गेम के बारे में भी आपको बता दिया है। एक और है लोन ऐप। लोन ऐप के बारे में कैसा रहता है, लोन हम ऑनलाइन लोन ले लेते हैं। अभी लोग बैंक में जाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे, आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो बहुत सारे लोन ऐप दिखेंगे आपको। इजीली आप लोन लेने के लिए क्या करते हैं, अपना सब इन्फॉर्मेशन अपलोड कर लेते, फोटो वगैरह सब इन्फॉर्मेशन। बाद में वही फोटो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने अपलोड किया है, उसका गलत इस्तेमाल करके आपके नाम का सिम कार्ड भी लिया जाता है, आपके नाम में किसी नाम से किसी बैंक में अकाउंट भी खोला जाता है, और वो सब फॉरेस्टर के पास वो सब इन्फॉर्मेशन रहती है। उसका इस्तेमाल फ्रॉड करने में, साइबर फ्रॉड का पैसा मनी कलेक्ट करने और ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। तो ये भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि ऑनलाइन किधर भी कौन सा भी लोन मिलता नहीं, और जो मिलता होगा तो वो फेक है, ये समझ लेना चाहिए। अभी स्लाइड बाय स्लाइड जाते, घ्या पुढची स्लाइड घ्या। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, ये सोशल मीडिया साइबर क्राइम 1 नंबर का है। बहुत सारे लोग क्या है, फ्रेंड रिक्वेस्ट करना एक दूसरे को, इंस्टा या फेसबुक, इसका गलत इस्तेमाल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं ऐसा, किसी फेक नाम से या किसी भी फेक नेम से अपना आईडी तैयार करना, बाद में किसी को गलत मैसेजेस करना। एक बात ध्यान में रखो, आपके यहाँ के स्टूडेंट नहीं करते होंगे, दूसरे स्कूल के करते होंगे ऐसा, आपको गलत लगेगा, नहीं तो हम ऐसे नहीं करते, बराबर है क्या करते हैं? कोई इंस्टा अकाउंट कितने लोगों का है? ओरिजिनल है सभी का या गलत नाम से किया है? तो अगर गलत नाम से किया होगा तो भी ये ध्यान में आता है किसने किया। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान किसी ने गलत मैसेज कर दिया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो उसको कुछ तो गालियाँ भेजेंगे, नहीं तो कुछ फोटो भेजेंगे, कुछ करेंगे। ऐसा करना नहीं। कभी भी करोगे तो आपके नाम पे तो सिम कार्ड नहीं रहता, एक तो आपके मॉम या डैड किसी के नाम पे सिम कार्ड रहता है, उनको तकलीफ होगी। आईपी एड्रेस सिम कार्ड नहीं होगा, वाईफाई रहता है, तो वाईफाई का अपने आईपी एड्रेस ट्रेस होता है। वाईफाई से कहाँ का वाईफाई यूज़ किया, किसका वाईफाई यूज़ किया, उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने के बाद उसने किसको सर्विस दिया है, उससे भी ये अकाउंट आपके घर वालों के नाम पे मिलता है, तो तकलीफ उनको होता है। तो ऐसा करना नहीं। फाइनेंशियल साइबर क्राइम मैंने बता दिया आपको, टास्क रहता है
इन्वेस्टमेंट ऐप रहता है, टास्क फ्रॉड रहता है, लोन ऐप, ये अलग अलग हो गए फाइनेंशियल। ऑप्शंस कंटेंट रिलेटेड साइबर क्राइम, गलत कुछ बना के भेज दिया या कुछ हुआ तो वो एक ऑर्डर तो आगे आगे आएंगे। नेक्स्ट, फेक प्रोफाइल अकाउंट, मॉर्फिंग हम जब भी हमारे फोटो अपलोड करते हैं, एफबी हो, इंस्टा हो या किधर भी, तो हमारे फोटो का गलत इस्तेमाल करना, हमारा चेहरा अलग और बॉडी अलग ऐसा जो बनाते हैं उसको मॉर्फिंग कहा जाता है। इसका गलत इस्तेमाल सेक्सटॉर्शन, किसी के साथ वीडियो कॉल करे, अननोन नंबर है, किसी का वीडियो कॉल आया तो कभी भी वो रिसीव करना नहीं, या हमें भी किसी के साथ वीडियो चैटिंग नहीं करनी चाहिए अननोन नंबर से। वो हमारा जो भी फेस है, फेस अलग बॉडी को लगा के उसको एक्सटॉर्शन भी कर सकते हैं। हमारा पैसे भेजो, नहीं तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको ये आपकी पिक्चर, आपका फोटो भेजा जाएगा, ऐसी धमकी दी जाती है और आपसे पैसे यानी वसूल किए जाते हैं, एक्सटॉर्शन किया जाता है। दूसरा, मार्केट प्लेस, मार्केटिंग का भी चेन मार्केटिंग वगैरह बहुत सारा रहता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे करते 200 रुपये डालो 400 रुपये दे देंगे, ऐसा कभी होता नहीं, तो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। फ्रॉड कॉल, फॉल इन लव, स्टेकिंग, किसी के अकाउंट को फॉलो करना ये भी गलत है, यानी अलग तरीके से अननोन है, बार बार आप उसका अकाउंट देखते रहते हैं या फॉलो करते रहते हो, वो क्या करता है, उसकी एक्टिविटी क्या है। मानो बहुत सारे क्राइम सोशल मीडिया के कारण जो एक्यूज है, आरोपी है, उनको क्राइम करने में इजी भी जाता है। कैसे पता है आपको? एक एग्जांपल देता हूँ, हुआ है, एक्चुअल ऐसा हुआ है। एक जन घर बंद करके गया, गोवा में गया था एंजॉय करने के लिए। लोगों को तुरंत स्टेटस डालना, एफबी पे डालना ये आदत रहती है, एंजॉइंग इन गोवा, फोटो बिटो सब डाल दिया, एंजॉइंग विथ फैमिली। चोर बोला ठीक है, तू उधर ही एंजॉय कर, मैं अभी घर पे जाता हूँ। तो ऐसा एक्चुअल हुआ है। तो सोशल मीडिया कितना, तो विज्ञान शाप या वरदान, पहले लिखते थे ऐसे, अभी लिखते या पता नहीं। तो ये एक दैट टाइप ऑल्सो सोशल मीडिया इज हार्मफुल, ऑल्सो हार्मफुल, नॉट टोटली हार्मफुल लेकिन ऑल्सो हार्मफुल। नेक्स्ट, फेक प्रोफाइल, आपको बताया ना, किसी का फोटो यूज करके गलत इस्तेमाल। अभी एफबी पे तो फेसबुक पे बहुत सारे लोगों के किसी के भी फोटो यूज करते और अकाउंट ओपन करते। अकाउंट ओपन करने के बाद मैसेंजर पे जाते, मैसेंजर में जो आप हमारे फ्रेंड लिस्ट में उनको सबको मैसेज कर देते, भाई आई एम इन ट्रबल, अभी मैं थोड़ा अड़चन में हूँ, यहाँ घूमने आया था, मेरा पर्स गुम हो गया, मेरा मोबाइल गुम हो गया, मुझे पैसे भेज। बराबर, जो एकदम क्लोज फ्रेंड हो तुरंत पैसे भेज देता है। तो ये ऐसे फोटो यूज करके, उसमें ऑप्शन रहता है, अभी प्राइवेट अकाउंट भी बनते हैं, तो फेसबुक पे जो भी अकाउंट है उसको प्राइवेट करना चाहिए, ताकि हमारा जो फोटो है कोई डाउनलोड करके उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंट हैक। विश्वास साहब ने आपको बताया कि अकाउंट हैक करना कैसा इजी है। किसका भी यूजर नेम है, यूजर नेम से हम हमारा पासवर्ड कुछ भी इजी पासवर्ड रखते हैं, तो पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रांग। जब हम यूजर आईडी क्रिएट करते हैं तभी गूगल पे भी वो जो प्लेटफॉर्म पे करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी आता है कि योर पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रांग। बराबर, अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड रहना चाहिए और जो इजी नहीं चाहिए। तो ये ऐसी अकाउंट हैकिंग जैसी पॉसिबिलिटीज कम होगी। बहुत सारे लोगों को तो हमारा एटीएम कार्ड रहता है, एटीएम कार्ड, बराबर, एटीएम कार्ड नहीं तो क्रेडिट कार्ड, उसका इन्वोलप रहता है, बराबर, इन्वोलप के ऊपर वो पासवर्ड लिख के रखते हैं लोग। ऐसा भी होता है।
तो पासवर्ड तो ऐसा लिख के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो गुम हो गया तुम्हारा एटीएम तो वो पासवर्ड इजीली मिल जाता है, तो उसी से वो एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बता दिया आपको। नेक्स्ट, मॉर्फिंग, चेहरा अलग है। नेक्स्ट, कस्टम फ्रॉड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्ती हो गई, बता देते हैं मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे, आपको गिफ्ट भेजने वाला हूँ, गिफ्ट भी भेज देते हैं। बाद में वो प्रोसेसिंग के लिए पैसा सेंड करने के लिए मनी सेंड करने के लिए बता देते हैं। फिर कई लोगों को मनी सेंड करने के बाद 2 लाख 4 लाख 5 लाख हो गए प्रोसेसिंग फी, तो फिर धमकियां भी आने लगती है कि आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया, इनकम टैक्स को आपके बारे में बता देंगे, ऐसा कुछ भी धमकियां देके फिर और पैसा मांगते रहते। दैट इज वन टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन। और ऐसा कोई गिफ्ट भेजने के लिए कौन सा भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जो ऐसा एकदम वर्चुअल तुम्हारी सोशल मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आपके साथ दोस्ती हो गई और हम आपको गिफ्ट भेज रहे हैं। सामने दोस्ती हो गई तो भी हम भेजते हैं क्या? गिफ्ट देते हैं जल्दी? इतने ऐसे इतना महंगा गिफ्ट देते हैं क्या? अरे देते हैं क्या? शायद देते होंगे, लड़कियां नहीं देती, नहीं देते ना कोई भी गिफ्ट। तो आमने सामने जो मिलते हैं दोस्ती करते वो भी गिफ्ट नहीं देते। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कोई मिला होगा तो वो गिफ्ट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, बराबर। नेक्स्ट, ये वही, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ क्राइम। नेक्स्ट, ये मार्केटिंग। अभी ये मार्केट में एक नया फंडा आया है। क्या फंडा आया है? मेरी ट्रांसफर हुई है, दुबई में जॉब लगा है, मैं सब छोड़ के जाने वाला हुआ। अभी मेरा मुंबई में एक फ्लैट है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कुछ भी, बुलेट है, कुछ कार है। कार अभी जो मार्केट में चली, कौन सी कार है अभी मार्केट में? कौन सी कार अच्छी है? सफारी। और 2 व्हीलर में ओला, स्प्लेंडर, वो 15 R15 वगैरह रहता है ना, जिसका आकर्षण रहता है, लोगों अट्रैक्शन रहता है, बराबर। R15 या कौन सी और पल्सर, ओके यामा, बराबर, RX100, उसका बहुत मार्केट है। तो कुछ भी बता देते, मोबाइल पे, व्हाट्सएप कॉल पे या टेलीग्राम पे भेज देते, या तकरीबन पुरानी चीजें बेचने का कौन सा ऐप है वो? OLX, बराबर। OLX पे भेज देते हो, एक्चुअल में ऐड दे देते, मेरा ट्रांसफर हो गया, दुबई में जा रहा हूँ, मैं सस्ते में आपको बेच रहा हूँ। लोगों को क्या लगता है, अरे सस्ते में मिल रहा है, चलो भेजो पैसे। आप पैसे भेजते रहते हो, उधर से ATM से विड्रॉ कर देते हो। और अकाउंट भी कैसे, फ्रॉडस्टर लोग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं पता है? कोई भी स्लम एरिया का या किसी भी गांव का, भरतपुर राजस्थान, प्रॉपर राजस्थान का कोई है क्या यहाँ पे? नीचे करो। जामतारा वाला कोई है? जामतारा वाला है कोई? 1-2 जन है। जामतारा वेब सीरीज किसने देखी है? अरे बहुत सारे लोगों ने देखी है, बराबर। तो ये कोई भी गांव में से लोगों के नाम पे बैंक में अकाउंट एक के नाम पे रहता है, उसको मोबाइल अटैच दूसरे के नाम पे रहता है, और वो अकाउंट हैंडल करने वाला तीसरा ही रहता है, और पैसे भेजने वाले हम जैसे रहते हैं, चलो सस्ते में माल मिल रहा है, डालो पैसे, बराबर। तो वो पैसे जैसे आप ट्रांसफर करते हैं उसके अकाउंट में, वो मजे से किधर तो बैठता रहता है। एक तो अकाउंट रहता है झारखंड का, वो बैठता है दिल्ली में, नहीं तो दुबई में, उधर से विड्रॉ कर देते पैसे तुरंत। अभी तो फिलहाल ऐसे फ्रॉडस्टर लोग ऐसे हैं, तुम्हारा पैसा जैसे ही उनके अकाउंट में जाता है, कंप्लेनेंट का पैसा ऑटो डिबिट पे रहते हैं, अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फटाफट पैसे निकल जाते हैं।
हमारा इन्वेस्टिगेशन उन तक पहुंचने तक वो पैसा विड्रॉ हुआ रहता है। तो ऐसा कोई भी OLX पे सस्ते में एकदम गाड़ी है 2 लाख का और कोई 50,000 में बेच रहा हो तो समझ लेना कि ये कुछ तो गड़बड़ है, बराबर। तुम्हारी भाषा में भाई ये रॉन्ग नंबर है, बराबर ना। चलो नेक्स्ट, ये OLX फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड, KYC, KYC के लिए भी बहुत सारे बैंकों से फोन आते हैं। आपका KYC नहीं हुआ, आपका आधार कार्ड नंबर बताओ, ATM कार्ड नंबर बताओ, CV नंबर बताओ। CV नंबर पता रहता है ना, लास्ट में 3 ATM कार्ड के पीछे। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहते हैं। गिफ्ट वाउचर फ्रॉड, रिवॉर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, गूगल सर्च फ्रॉड, KBC फ्रॉड। कौन बनेगा करोड़पति, बीच बीच में आता था ये, ऐसे भी कॉल आते थे, बराबर। फ्रॉस्टर लोग क्या करते हैं, अभी जो मार्केट में चालू है, अभी जो घटना घट रही है, जिसके बारे में लोगों को आकर्षण है, वही चीजों से वही ये करके बता के आपको चीटिंग करते हैं। KBC रहता है, बिग बॉस रहता है, और कौन सी सीरियल चालू रहती है उसके बारे में बताते रहते हैं। मैट्रिमोनियल फ्रॉड, सिम स्वैप फ्रॉड। मैट्रिमोनियल में भी ऐसा जिसका शादी नहीं होता, आपको तो बहुत टाइम है अभी, आपको नहीं ये है, लेकिन ऐसा भी फ्रॉड होता है। नेक्स्ट, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, एक क्लोनिंग रहता है। हम जब भी ATM में जाते हैं वहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है, उसका कॉपी किया जाता है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ अभी तक हुआ नहीं लेकिन ऐसा होता है। ATM कार्ड, ATM के आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए जो 16 डिजिट नंबर रहता है और CV नंबर रहता है, वो मिल गया तो ATM की भी जरूरत नहीं, उसी से क्या होता है, ट्रांजैक्शन हो सकता है। तुरंत कॉल आता है जिसका ATM में अगर OTP की जरूरत पड़े तो आपका कार्ड ब्लॉक हो गए, OTP बताओ जल्दी, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल गड़बड़ OTP बताने के बाद होने वाला रहता है, लेकिन तुरंत कॉल आ गए तो कुछ तो काम में रहता है, अरे ठीक है भाई ये ले लो। कोई काम में रहता है, बता देता है, अरे रहने दो, चलो ये ले लो फटाक से, बराबर। तो ऐसा कभी करना नहीं। नेक्स्ट, OLX फ्रॉड, मेरा ट्रांसफर हो गया, नहीं तो अभी ये नया फंडा है, मैं आर्मी में हूँ, मेरा आर्मी का ऐसा कार है, थार कार या कौन सा वो 4x4 कार रहता है ना गाड़ी, थार या कौन सा दूसरा रहता है एक महिंद्रा का, हाँ जीप, बराबर। तो वैसी गाड़ी बताते हैं 50,000, 40,000, 30,000, तो लोग तुरंत उसमें फंस जाते हैं। नेक्स्ट, KYC बता दिया। नेक्स्ट, गिफ्ट वाउचर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। नेक्स्ट, गूगल सर्च में अभी घूमने जाना हो किधर, होटल बुकिंग, बहुत सारे लोग क्या करते हो, होटल बुकिंग ऑनलाइन करते, बराबर ना। तो क्या रहता है, जो होटल है उसी टाइप का, उसी होटल का फोटो डाल के भी वेबसाइट क्लोनिंग किया जाता है। हम बुक करते हैं, जब होटल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हमारा पैसा इधर आया ही नहीं, किसी गलत जगह पे हमारा बुकिंग हो गया। ये सब डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अभी वेकेशंस आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने वेकेशन का प्लानिंग किया होगा, तो आपके पेरेंट्स को बता देना कि ये बुकिंग करते समय ये ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, KBC फ्रॉड, कौन बनेगा करोड़पति। चलो नेक्स्ट, लोन ऐप, लोन लेते समय ये भी बताया आपको। नेक्स्ट, मैट्रिमोनियल। नेक्स्ट, सिम स्वैप, सिम कार्ड जब स्वैपिंग करते हैं हम लोग तो हमारे हाथ से सिम कार्ड स्वैप करना चाहिए, उसके हाथ में देना नहीं कभी सिम कार्ड। ये काउंटर पे खड़ा रहता है या ऐसा स्वैप किया, बाद में काउंटर के नीचे एक आधा मशीन रहता है, उधर भी स्वैप किया कार्ड, तो पता चल सकता है क्या। तो तुम्हारा डेटा थेफ्ट जो होता है, तो डेटा थेफ्ट इसी तरह से होता है। और हमारा पासवर्ड जो है वो हमने इंटर करना चाहिए,
और पासवर्ड इंटर करते समय कोई पासवर्ड ना देखे, इसका भी प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट, वीआईपी नंबर, फिशिंग मेल, इसके तो डिटेल में जाऊंगा नहीं, खाली वीआईपी नंबर है। बहुत सारे मोबाइल वीआईपी नंबर या व्हीकल के लिए वीआईपी नंबर, ऑनलाइन बुक करने के लिए, जो भी मानो आप जो भी ऑनलाइन बुक करते हैं या ऑनलाइन कुछ भी करने जाओगे तो आपके मन में 100% डाउट आना चाहिए कि ये साइट ओरिजिनल है या नहीं है। इज इट रियल साइट और इज इट फ्रॉड साइट, ऐसा आपके मन में कंपलसरी आना चाहिए। नेक्स्ट 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 किड्स, ये हमारा पार्ट गेमिंग वाला, बराबर। गेम खेलते समय एक बात बताना भूल गया, आपने एक बार एखादी चीज परचेस की, एखादा इंस्ट्रूमेंट हो, वेपन हो, कुछ भी हो, और गेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है? वी बिकम वायलेट, हमारा जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। आप खुद को ही, जो गेम खेलने वाले हैं ना, वो खुद को ऑब्जर्व करो, आप कितने शांत थे और आप कितने आक्रामक हो गए। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और एक बार मैंने इंस्ट्रूमेंट ले लिया या वेपन ले लिया, एक बार पैसा डिबिट हो गया तुम्हारे अकाउंट से, तो ऑटो डिबिट पे ऑटोमेटिकली जाता है। ऑटोमेटिकली पैसे हफ्ते भर में, 15 दिन में या मंथ में ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहते हैं। 2 रुपये 4 रुपये कभी कभी ध्यान में नहीं रहता, कोई ध्यान नहीं देता, जाने दो 4 रुपये कटे, अरे लेकिन हर वीक में 4 रुपये बोले तो वो कितना हो गया, 200 रुपये बोले तो वो टोटल ईयर में एनुअली कितना हो गया। तो गेम खेलते समय या मोबाइल हैंडलिंग करते समय केयरफुली हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट, वाईफाई में जाते, फ्री वाईफाई, अभी तो किधर भी फ्री वाईफाई रहता है, तो उसकी फ्री वाईफाई जब अटैच होता है हमारे मोबाइल को, तो तभी भी हमारे मोबाइल में जो भी डाटा है वो थेफ्ट हो सकता है, डेटा थेफ्ट हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट 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 एनी डेस्क के माध्यम से भी डेटा थेफ्ट करने का ये भी इजी माध्यम है, लेकिन जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते, मोबाइल खेलते खेलते अगर मोबाइल में गेम खेल रहे और कोई आ गया रिक्वेस्ट, फटक से गया, वो कट करने में कभी कभी क्या रहता है, कैंसिल का बटन, बराबर ना, विंडो ब्लिंक करता है अचानक, कैंसिल का कौन से साइड पे रहता है, डिलीट करने का, लेफ्ट राइट रेगुलर। तो जो एक्सेप्ट करने वाला है ना, वो बराबर गलत कर देते हैं, हमें आदत पड़ी रहती है इधर से कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, वो एक्सेप्ट का ए साइड पे रहता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नेक्स्ट नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन आंसर? किसी को है कोई इसमें डाउट? हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी क्राइम हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, कॉल आता है, अननोन नंबर आता है, हमें अननोन नंबर से हम लोग परेशान होते हैं। तो एक बार, 2 बार, 4 बार हमने बता दिया उसको कि मैं आई एम नॉट दैट पर्सन, तो क्या करते हैं, वो बार बार कॉल आने से हम तंग हो जाते हैं और हम उसको गालियां देने शुरू करते हैं, बराबर। आप तो नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं, परेशान होके गालियां देते, गालियां देने के बाद वो वही रिकॉर्डिंग करके हमें भेज देता है, ये देखो तुमने हमारे बारे में गंदी गंदी बात की है, हम आपके खिलाफ
क्राइम रजिस्टर करेंगे, क्राइम रजिस्टर करने की धमकी देके फिर मनी यानी पैसा एक्सटॉर्शन करते हैं, आपसे पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी क्राइम होता है. थैंक यू. I would like to thankful to all school authorities who have give us opportunity to come and interact with you. Namaste everyone. So we have now reached to our beautiful Gyan booth. I, Swastika Sharma from grade 11 science, would like to take this opportunity to express our gratitude into words. First of all, I would like to thank Almighty God for giving us a huge success for this Gyan booth. Then on the behalf of the school management and the students, I would like to extend our heartiest thank you to our Honorable Chief Guest, Senior Police Inspector of Uttan, Mr. Dadaram Karande, and Assistant Police Inspector of the Uttan, Mr. Swapan Bishwas, for their presence in this Gyan booth. Thank you, sir, for inspiring us and motivating us by your knowledge and by your kind words. You both of us are an explanatory peoples and has given a lot of information to us. I would like to then summarize the whole Gyanbodh in the Marathi. तर थँक्यू सो मच. आम्हाला जे महत्त्व सांगितलं आहे तुम्ही सायबर क्राईमचे बारे में आणि ट्रॅफिक रूलच्या बाबतीत जे मी तुम्ही सांगितलं आहे ते आमच्या जीवनात खूप खूप हेल्प करणार, आम्हाला ते माहिती आहे आणि थँक्यू फॉर दॅट इन्फॉर्मेशन. आणि जे तुमचे रिअल लाईफ एक्सपिरियन्सेस आहे जे तुम्ही आता आम्हाला सांगितलं ते आम्हाला अजून अवेअर केलं आहे की आमच्या जीवनात सायबर क्राईम आणि ट्रॅफिक रूलचे ते आहे ते किती इम्पॉर्टंट आहे आमच्या जीवनात. आणि तुमचे सॉन्ग होतं ट्रॅफिक रूल्स ते त्याच्यात एक लाईन मला खूप जास्त आवडलं, रफ्तार से ज़्यादा जिंदगी ज़रूरी है. Thank you so much, sir, for this beautiful session, which not only gave us the information about the importance of following the traffic rules through the wonderful video, which gave us the message that raftar se zyada zindagi zaruri hai, and also about keeping yourself safe from all sorts of cyber crimes. So students, now shall I ask you three easy questions related to today's session. Are you ready? Yes or no? Okay, first question, will you share your OTP with any stranger? Will you attend any video call from the stranger? Yes or no? And do you really think that raftar se zyada zindagi zaruri hai? Yes. If yes, then please give a huge round of applause for this fruitful session. Thank you so much, sir.